Hello and welcome to Voice IAS Academy. I'm Rishad Khan, your Indian Polity faculty. So I will be teaching today's topic is emergency. So we have three types of emergency: national, state, and financial emergency. So we have three types of emergency: national, then state emergency, or you can say presidential rule. And the last one is financial emergency. So this has been imposed. This has been frequently misused, and this had never imposed in the country so far. Okay, financial emergency. Got the point? Okay. So emergency deals, Indian Constitution deals with Part 18, Part 18 of Indian Constitution. It deals with the emergency from the Article 352 to 360. 352 to 360. Okay. 352 to 360. National emergency deals with 352. This deals with 356 और 365. कुछ प्रोविजन 365 के भी यहाँ लगते हैं, ठीक है. An article on financial emergency deals with Article 360. पीटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सिर्फ पीटी के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है. इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट इफ द क्वेश्चन कम्स तो बहुत ही ऊपर से क्वेश्चन आएगा. हु इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल, रिवोक कौन करता है, ठीक है ना. मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हैं प्रेसिडेंट के, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. Okay, now this topic is completely a factual topic. You kindly make a small notes on this. ठीक है, ये है, ये है. That's it. Don't keep on revising the same content. बुक से बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एक कंटेंट अपने पेज पे लिख लो, एक दो पेज पे पूरा इमरजेंसी डील हो जाएगा, ठीक है. So national emergency, start with the national emergency. National emergency. So where it can be imposed? It can be where. It can be not why, how, ground. I'm talking about where. It can be imposed in a whole country or specific part of the country. ठीक है, या तो पूरी कंट्री में या तो फिर स्पेसिफिक पार्ट. Now, what will be the ground of imposition of this? Okay, there are three grounds. At the time of constitution, at the time of independence: war, external aggression, ठीक है, and internal disturbance.
ठीक है, ये 3 ग्राउंड था at the time of independence. Okay, war, external aggression, or internal disturbance. Now, internal disturbance has removed by 44th Constitutional Amendment Act, and this has been renamed, or you can say the name, it has changed from internal disturbance to armed rebellion. So you know Bhindranwala, Punjab. क्या था? What is the important operation? The name of the operation? Blue Star Operation. ठीक है, Bhindranwala got killed. ठीक है, and eventually भिंडरावाला को पावरफुल बनाने में कांग्रेस का ही हाथ था, स्पेशली संजय गांधी. ठीक है, अल्टीमेटली उनको मारने में भी कांग्रेस का हाथ है. तो कांग्रेस इज वेरी स्मार्ट, should know that. Okay, this has changed to internal disturbance to armed rebellion. ठीक है, आर्म रेबेलियन में चेंज कर दिया गया इसे. नाउ यू कैन इम्पोज प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द 3 ग्राउंड: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन. आर्म रेबेलियन. फाइन. कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? Now, when it can be imposed? When? So it can be imposed at both time. After occurrence of any of the 3, ये 3 में से कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद भी कर सकते हैं, और इट कैन बी बिफोर ऑल्सो, either of the 3. So we assumed, the Prime Minister satisfies itself that there is a possibility that the war can happen, or external aggression can happen, or armed rebellion can happen. Okay, so they can impose a national emergency before also, और आफ्टर के बाद तो करना अकलमंदी है. ठीक है, मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने कोई बहुत बड़ा अकल का काम नहीं किया. So any confusion on this? आर्टिकल. अब एक क्वेश्चन आता है कि इफ देर इज ऑलरेडी देर वॉज इम्पोज्ड नेशनल इमरजेंसी, ऑलरेडी क्या है? इम्पोज्ड. डू वी रिक्वायर अ न्यू नेशनल इमरजेंसी टू बी इम्पोज्ड? प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए उसके लिए फिर से इम्पोज करने के लिए? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, डज इट रिक्वायर्ड व्हेन ऑलरेडी एट वन प्लेस देयर वाज एन इंटरनल, or you can say the national emergency was already imposed? Do we require a proclamation of national emergency anew with a new threat? So earlier it was there. Then Article 38, Constitutional Amendment Act 38 से इसे मना कर दिया गया. It has said that it is not required. क्या है? इसका रिक्वायरमेंट नहीं है. If it is already there, there is no requirement to give a fresh proclamation. Fresh proclamation की जरूरत नहीं है. You can continue that. You can extend the date by passing the resolution in the parliament. You can continue. ठीक है? Okay, this happened at the time of 1962 war. Proclamation of emergency was already there. ठीक है ना? In certain parts of certain areas. ठीक है? जब हमने 1965 में हमने पाकिस्तान से वॉर किया तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी. वी हैव जस्ट कंटिन्यूड दैट. ठीक है, तो ये भी याद रखो कि फ्रेश की ज़रूरत नहीं है. अगर ऑलरेडी कोई नेशनल इमरजेंसी है तो वो कंटिन्यू हो जाती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा नेशनल इमरजेंसी अगर कहीं लगी है तो इट इज़ नॉर्थ ईस्ट. बहुत लंबे ड्यूरेशन तक लगी है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में it has been imposed for a longer duration national emergency. Okay, got it? Now, when we impose a national emergency on this ground, these two ground, okay, either war or external aggression, we call it as a external emergency.
इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एमरजेंसी. And when we impose on this ground internal disturbance, then it is known as internal. एक और important चीज, this kind of division, external or internal, it is not categorized by the constitution. ये constitution ने categorization नहीं किया है. ठीक है? constitution में generally सिर्फ emergency है, वो भी national emergency. ठीक है? constitution ऐसा कोई categorization नहीं किया है कि external emergency, internal emergency. I'll tell you why we have categorized this. ठीक है? What is the reason behind categorizing such thing? Okay, internal and external emergency. Okay. Now, another one is limit जो हमने किया ना specific part के लिए, this came from 42 amendment. ठीक है? ये 42 amendment act से हमने किया. ये specific part पे भी limit कर सकते हैं. ठीक है? Now, who proclaimed the emergency? Proclamation of emergency happens by the president. It is by the order of the president. So the proclamation is with president. Who imposed national emergency? All the national emergency is proclaimed by president only. चाहे वो स्टेट हो, नेशनल हो या फाइनेंशियल हो, सारा कौन करेगा? ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट इज समथिंग डिफरेंट. तो दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ Council of Minister headed by Council of Minister. Head कौन करेगा? Prime Minister. At 1976 national emergency, in the 1976 national emergency, what happened? Indira Gandhi has imposed the national emergency. ठीक है? इंदिरा गांधी क्या किया? Impose के national emergency. Okay? और थ्रू आउट द नेशन ही लग गया. ठीक है? पहला इमरजेंसी है जो थ्रू आउट द नेशन लगा हुआ है. ओके. नाउ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? शी हैज कॉल्ड द not council of cabinet, and after giving the advice to the PM, she has informed the cabinet that I have given the advice to impose the national emergency in the country. So it was like a kitchen cabinet. एक तरीके से किचन कैबिनेट की तरह फंक्शन करे. इंदिरा गांधी का जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आता है ना, इट फंक्शंस लाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द कैबिनेट सिस्टम जो है वो किचन कैबिनेट की तरह फंक्शन करता है. व्हाट इज किचन कैबिनेट? पूरा कंट्रोल कर ले. ठीक है? मतलब एक इनफॉर्मल मतलब शी आइदर ऑफ द पीएम, एक्चुअली दे आर हेडिंग. बहुत ही मतलब इनफॉर्मली वो टॉक होता है, इनफॉर्मली हम कर लेंगे. ठीक है? इट इज फंक्शनिंग लाइक अ किचन कैबिनेट. ओके. बिफोर 42nd Amendment Act, now this happened. Now there was one more thing. Article 28, Constitutional Amendment Act 28 to 25. 28 बताया था लास्ट में कि advice on the president, the advice given by the president, Prime Minister to the president is bound to act on the advice. ठीक है? They cannot deny the advice. ठीक है? So what they had done, she has imposed the cabinet, she has imposed the national emergency in the country. Okay? And there was not a problem. The major change, 42nd Constitutional Amendment Act, it came during after emergency in 1976.
वो भी 76 में आया, ये भी 76 में, नेशनल इमरजेंसी। ठीक, नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या है, होता क्या है नेशनल इमरजेंसी में? नेशनल इमरजेंसी में होगा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो नेशनल इमरजेंसी में आपका क्या जाएगा, सॉरी 38 प्रेसिडेंशियल असेंट इज बाउंड, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस बाउंडिंग है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 38 नॉट 28, 38 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो क्या है, इट इज बाउंडेड। ऑल्दो इट गॉट रिवर्स्ड, वो रिवर्स हो गया 42nd में, 44th में वो रिवर्स कर दिया उसको जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने। एक्चुअली दैट वाज अ बेटर सिस्टम। 38 में जो हमने चेंजेस लाए थे, दैट वाज एक्चुअली अ बेटर सिस्टम, दैट द प्रेसिडेंट शुड बी बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, दिस एक्चुअली केम इन 1975, 38 अमेंडमेंट एक्ट में 1975 में आया, उसके बाद में इमरजेंसी लगी है। ठीक, इसमें इम्यून सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था 38 में, द प्रेसिडेंट एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट इज इम्यून फॉर इम्पोजिंग द नेशनल इमरजेंसी, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इम्यून था जुडिशियल रिव्यू से, पर वो रिवर्स हो गया लेटर। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट से उसको रिवर्स कर दिया गया कि इम्यून नहीं है, जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू इट, द एडवाइस टेंडर बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, वो रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है वो। ठीक है, ऑल्दो 38 में वो एब्सोल्यूट होना था, कर दिया था हमने। पार्लियामेंट्री के थियोलॉजी, पार्लियामेंट्री के सिस्टम के हिसाब से दैट हैज टू बी एब्सोल्यूट, पर वो हमारे साथ में क्या, हमारा मिक्स है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है अमेरिकन। ठीक है, फंडामेंटल राइट सिस्टम इज अमेरिकन। ठीक है, एंड आवर पॉलिटिकल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम इज एक्चुअली ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या है, जुडिशरी इज अ लोअर पोजीशन, सेकंड, एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम बॉडी। ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है, ऐसा कोडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, मोर ऑफ अ ह्यूमन राइट्स है वहाँ पे, और ज़्यादा इलाबरेटेड है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, ज़्यादा इलाबरेटेड है। नाउ व्हाट हैपेंड in the 44th Amendment Act, okay, certain changes has made in the 44th Amendment Act. Now earlier the president rule was imposed on the advice given by the prime minister. ठीक है, तो एडवाइस कैसे होता है, ओरली नहीं देते हैं, रिटन देते हैं। ठीक है, but it was prime minister authority to give the advice. She has given the advice, they imposed the प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको चेंज कर दिया गया, एंड इट चेंजेस टू नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन द रिटन ऑर्डर ऑफ कैबिनेट। किसके, कैबिनेट के रिटन ऑर्डर पे ही नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से यही चेंज किया गया। द वर्ड कैबिनेट is only used once in the entire constitution in article 352। ठीक है, कैबिनेट का जो वर्ड है वो एक ही बार यूज हुआ है पूरे उसमें, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 में, 352 में। ओके, बाकी कहीं यूज नहीं है वर्ड कैबिनेट। ओके, नाउ can it be challenged on the ground of nullified? Intention क्या है पता नहीं। Can it be challenged? Why such emergency was imposed? Emergency in 1976. Why was the reason it was imposed? There was two major reasons. One, Indira Gandhi has lost her seat. Her election was invalid, declared invalid. ठीक है, okay, Shah Commission की report आई, they found that there is a malified, okay, misuse of the state fund during the election of the Indira Gandhi. Justice
you can say the High Court judge, Allahabad High Court has declared the election as a invalid. Okay, right. Another reason was there was a student agitation was going on throughout the country. ठीक है, it begins from Gujarat, ठीक है, and it reaches to Bihar. Okay, तो स्टूडेंट एजिटेशन भी बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है. एंड इट वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ जेपी मूवमेंट. व्हाट इज जेपी मूवमेंट? जयप्रकाश नारायण मूवमेंट. ठीक है, जयप्रकाश नारायण वाज एक्चुअली अ फ्रीडम फाइटर. ठीक है, गांधीयन फिलोसफी पे बिलीव करने वाला. तो इफ यू आर गिविंग अ पेपर फॉर बिहार, जयप्रकाश नारायण का एक क्वेश्चन पक्का है यूपीएससी में, सॉरी बिहार की पीसीएस में. बिना जयप्रकाश के नारायण के क्वेश्चन के आपका उनका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है. ठीक है, इज जयप्रकाश नारायण इज अ वेरी टॉलेस्ट फिगर इन बिहार. ओके, सो देयर वाज अनदर मूवमेंट, दिस वाज द रीजन. सो देयर वाज a huge protest was going on in the country. Jayaprakash Narayan has given the slogan of Chalo Delhi. He was such a charismatic leader. The people who was working on the field, on the agricultural land, खेती कर रहे थे, जयप्रकाश का नारा सुन के वो चल दिए वहां से, घर भी नहीं गए. They have started moving towards Delhi, walking along. बिहार से दिल्ली आ गए वो लोग. It happened. Okay, that is a fact. What the point? GP movement was also there. So इंदिरा गांधी को लगा कि सत्ता जा रही है, अल्टीमेटली चली भी गई. Okay, and they have formed in that perspective, that leads to what? Leads to the national emergency in the country. Okay, अब national emergency जब लगी, so you can say the papers, newspaper was strictly banned. ठीक है, उनके ऊपर censorship बहुत ज़्यादा चालू हो गई. All the officials were coming on the time in the office. Train was running on the time. तो national emergency ज़्यादा better है as compared to democracy. ट्रेन टाइम पे चल रही है, लोग काम टाइम पे कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है. ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है. No, it's not a national emergency. That power has been, you can say, वो पावर डिराइव किया था, एक एपिडेमिक एक्ट है और एक दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. इस दो एक्ट से उस पावर को डिराइव किया था. ठीक है, हालांकि दोनों में वैलिड नहीं है, वो वैलिड ग्राउंड ही नहीं था उसको इम्पोज करने का. सबसे इम्पोज करने का वैलिड ग्राउंड ये था ये इमरजेंसी. ठीक है, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी का प्रोविजन नहीं है कहीं पर भी. ना यहाँ आए ना आए, किस पे लगाते हैं आप? इंटरनल डिस्टर्बेंस पे. अब उससे हेल्थ का क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है? बल्कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ लॉकडाउन, डिराइव फ्रॉम द एपिडेमिक एक्ट से और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया. ठीक है, अभी भी सब लगाने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी. When will go in on the peak? पीक सितंबर में जाएगा. पीक जाएगा मई में. मिड में, एंड ऑफ द मई में पीक पे जाएगा, फिर वो रिवर्स होगा. तुम्हारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं. तो चिल करो. लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब है. फायदा नहीं है. नहीं, ऐसे नहीं आ रहे थे. 1.5 लाख 1.25 लाख केसेस डेली आ रहे हैं आजकल. आज 1.45 है, कल 1.45 था, तो कम हो गया. ये कम हुआ ना फिर, ये कल से कम है. ठीक है, okay, relax. So national emergency can be imposed on the
written order of the cabinet by the 44th constitutional amendment act. ठीक है, okay. Now president proclaims the national emergency, we have understood, okay. लेकिन प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड. एक तो इम्पोज हो जाएगा, उसके कंटिन्यूएशन के लिए क्या चाहिए? अप्रूवल. इसके प्रोक्लेमेशन के कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूवल चाहिए. अच्छा, इससे पहले प्रोक्लेमेशन लगेगा कितने टाइम तक के? ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. अर्लियर देयर वाज इंडेफिनिट पीरियड तक लग सकता है. ड्यूरेशन इज इंडेफिनिट. इंडेफिनिट पीरियड तक लगेगा, लेकिन क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए. ठीक है, अप्रूवल चाहिए हर 6 महीने पे. ओके, यहाँ पे 6 महीने का केस नहीं है. ठीक है, प्रोक्लेमेशन के बाद में 6 महीने का केस है. जब आप प्रोक्लेमेशन करेंगे पहली बार, तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो ये था कि इट शुड बी गेट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ. 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए. जब एक बार अप्रूवल मिल गया, इट के बाद आफ्टर दैट टाइम इट विल बी आफ्टर विद इन 6 मंथ. 6 मंथ के अकॉर्डिंग में उसे आप जो है अप्रूवल ले लीजिए. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा. अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो सिर्फ राज्यसभा के अप्रूवल से भी काम चल जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, फिर 30 डेज के अंदर उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा. किसका? लोकसभा का. ठीक है, अप्रूवल समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? पहले 2 महीने के लिए ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था, दैट हैज बीन अमेंडेड टू 1 मंथ. ठीक है, इट इज रिड्यूस्ड टू 1 मंथ. विद इन 1 मंथ दे शुड गेट द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट. ठीक है, and in that parliament also what you should do, if you get the approval once, ठीक है, at the time of proclamation, immediately after proclamation, okay, then you should get the approval again at every 6 months. ठीक है, if the Lok Sabha is dissolved, then the Rajya Sabha will approve it and continue it. When the Lok Sabha reconstituted, then it should be get approval from within 30 days of the new house. ठीक है, right? So this is the approval. What is the, you can say, proclamation को revocation कैसे होगा? President revocation के लिए president can revoke any time. President क्या कर सकता है? It can revoke any time by the cabinet's order, written order की cabinet से आप रिवोक कर सकते हैं. या उसकी नहीं, अप्रूवल नहीं. प्राइम मिनिस्टर भी दे सकता है. प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली भी दे सकता है और कैबिनेट भी दे सकता है रिटर्न ऑर्डर पे. ठीक है, रिमूवल के लिए लॉजिकली भी लगता है. जितनी जल्दी इमरजेंसी इज नेवर कंसीडर अ गुड एस्पेक्ट, तो तुम उसको नेगेटिव ही पढ़ो. ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट से पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी तुम्हें. तो अगर रिमूवल करना है तो कोई भी कर दे, क्या फर्क पड़ता है. और एक तो कंडीशन ये है रिमूवल की. दूसरा, अगर से लोकसभा अकेले बोल दे रिवोकेशन के लिए, एक रेजोल्यूशन पास कर दे, तो प्रेसिडेंट हैज टू रिवोक इट. ठीक है, प्रेसिडेंट हैज टू रिवोक इट. पीरियोडिक पहले कैसा था? ये पीरियोडिक 6 महीने में आपको अप्रूवल चाहिए. दिस वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. दिस हैज केम फ्रॉम द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. नाउ अप्रूवल के लिए मेजॉरिटी कैसी चाहिए? बिल पास, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो इट शुड बी अ स्पेशल मेजॉरिटी. अप्रूवल रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? सिंपल, 50% +1 +2/3 present and voting. Special majority basically came from 44th Constitutional Amendment Act. इससे पहले क्या था? It was originally it was
सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, members can give a notice to the speaker to constitute the to bring a session for the special session for the Lok Sabha member, give a special session for the Lok Sabha because they want to consider the revocation of the national emergency. So this can happen. Okay, this was actually added by 44th Constitutional Amendment Act. ये किससे है? 44th Constitutional Amendment Act से इसे empowered किया गया है। तो अभी एक्चुअली में implementation of proclamation of national emergency is quite difficult and it is very easy for revocation. ठीक है, रिवोकेशन के लिए बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से रिवोकेशन हो सकता है। इट कैन बी रिवोक बाय सिंपल मेजोरिटी अगर प्रोक्लेमेशन सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी है। प्रोक्लेमेशन इज सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। रिवोकेशन सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है या नहीं? हो सकता है। मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, जुडिशियल रिव्यू इनिशियली है प्रोक्लेमेशन में। मैंने बताया ना आपको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो इम्यून था पहले जुडिशरी कि मेलाफाइड इंटेंशन देख सकता है कि नहीं देख सकता, जुडिशरी को एम्पावर किया गया उसके अंदर। और अब तो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल ही, हर जगह ही एप्लीकेबल है। कुछ चीज़ इम्यून बची नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, तो अब तो वैसे भी है। ठीक है, 1980 के केस से, मिनर्वा मिल के केस से उसे वो कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बिकम द बेसिक स्ट्रक्चर मिनर्वा मिल के केस से, और क्वेलो हिटो के केस से भी वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सो अब वो जनरली उसे वैसे ही कंसिडर करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू आउट इट। ओके, एंड इफ इट इज प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी इज रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, तो उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसे पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है रिवोकेशन के लिए। सो द रिवोकेशन हैज बिकम क्वाइट सिंपल ओवर टाइम। ठीक है, ओके, लेट्स सी द इम्पैक्ट। पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? चेंज हो जाएगा। So the impact will be, first impact, we will have a unitary form of government. तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन चेंज हो जाएगा। बट स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी डिसॉल्व। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रहेगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर इन द 7th शेड्यूल जो हुआ है ना, दैट विल लैप्स, वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में। ठीक है, तो स्टेट कैन मेक अ लॉ ऑन द, सेंटर कैन मेक अ लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो। यूनिटरी का मतलब यही होता है, ये स्टेट के पास में अपना कोई पावर नहीं है लॉ बनाने का। ओके, सेकंड, अगर स्टेट पे वो लॉ बनाया आफ्टर द डिक्लेरेशन और द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट माइट कीप द लॉ और स्टेट माइट रिमूव द लॉ। और अगर स्टेट कोई एक्शन नहीं ले, अगर स्टेट चाहे तो कंटिन्यू करे विद फॉर्मल उसका एक्नॉलेजमेंट करके कंटिन्यू कर दे उस लॉ को। ठीक है, और अगर नहीं करे तो विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज द लॉ विल लैप्स ऑटोमेटिकली। लैप्स होगा नहीं होगा?
इट विल लैप्स, ठीक है, स्टेट लॉ, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर 6 मंथ के अंदर, ठीक है, रिवोकेशन के 6 महीने के बाद में वो अपने आप लैप्स हो जाएगा, ठीक है, अगर से स्टेट कोई एक्शन ना ले उस पर, अगर चाहे स्टेट पहले रिवोक कर दे या चाहे स्टेट कंटिन्यू करा दे उसे, लेकिन उसे कंटिन्यू कराना पड़ेगा, स्टेट अपना लॉ बना करके या अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेंट्रल लॉ व्हाट हैज मेड ऑन द स्टेट, ओके. Normal distribution of power is suspended, okay, that we have already seen to it. President can also issue the ordinance, ठीक है, अगर लॉ बना सकता है सेंटर तो प्रेसिडेंट तो ऑर्डिनेंस वैसे भी इशू कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट, ठीक, ओके. पार्लियामेंट कैन असाइन एनी ड्यूटी टू एनी ऑफिसर, ठीक है, इवन टू द स्टेट के ऑफिसर्स को भी कोई ड्यूटी असाइन कर सकता है, ठीक है, इसका मतलब यही है, ओके. इम्पैक्ट लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर पे, पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. नाउ यू सी द लेजिस्लेचर ऑफ बोथ, ये लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, सॉरी स्टेट एंड पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट एंड द पार्लियामेंट. नाउ पार्लियामेंट कैन बी लोकसभा, हाँ, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा ही, लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, दैट इज कितना 1 ईयर एट ए टाइम, 1 साल, 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है. मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी बार बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेट, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेट टाइम तक, ठीक है. और अगर से रिवोकेशन हो गया, इफ इट गॉट रिवोक्ड, द प्रोक्लेमेशन गॉट रिवोक, देन द मैक्सिमम पीरियड फॉर एक्सटेंशन इज 6 मंथ, 6 महीने के अंदर यू हैव टू कंडक्ट द इलेक्शन. इफ इट इज इंक्रीजिंग द नॉर्मल टाइम तो 5 साल से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, इट इज अगेन सेम, इट कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट ए टाइम, 1 साल क्या कर सकते हैं हम, एट ए टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है. अनदर इज मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम इज इनडेफिनेट, कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, एंड रिवोकेशन के बाद में सेम है जैसा पार्लियामेंट का, ठीक है, रिवोकेशन के बाद में 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते. गॉट द पॉइंट. Now let's talk about the impact on the fundamental rights. So this is guided by Article 358 and 359. फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इट इज 358 एंड 59, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू 358 what can happen, ठीक है, 358 is applicable to when you are imposing to the entire country, ठीक है. सिंपल अगर आप एंटायर कंट्री से इम्पोज करें तो है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू 358 यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, ठीक है, यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट इनिशियली ओरिजिनली, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद में इसे चेंज कर दिया गया, यू कैन मूव टू द कोर्ट. अब कोर्ट को लेकर के आप जब फंडामेंटल राइट्स आपका ब्रीच हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं. इन द कोर्ट विल डिसाइड वेदर दैट इम्पोजिशन इज और द कर्टेलमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. पहले तो फंडामेंटल राइट कर्टेल कर सकते हैं, ये बात याद रखो. आपको कौन कौन से फंडामेंटल राइट मिलेगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में वो बात बताई होगी. कौन कौन सा आपका जाएगा ये बता देगा, जो नहीं बताएगा वो रहेगा. आर्टिकल 21 और 22 विल नेवर गो एट एनी केस. आर्टिकल 21 और 22 आपका कभी भी सस्पेंड नहीं होगा,
Article 21 is right to life and Article 22 is right against conviction. नहीं, right, conviction. Not double jeopardy. Preventive detention and precautionary detention. अभी समझ में आया? 22 वो है, ठीक है? तो 21 और 22 नहीं जाएगा आपका, ठीक है, एट एनी केस. ओके, आर्टिकल अगर से फॉर नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में लगाया गया है, तो आर्टिकल 19 आपका डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगा. आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट विल बी सस्पेंडेड. बट इफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द armed rebellion, then it will be considered as a Article 19 will not be suspended. Article 19 क्या होगा? सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है. ये दिस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम 359 से, ये प्रोटेक्टेड है. इसी के लिए वो कैटेगराइजेशन था, इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है. तो आपके कौन से सस्पेंडेड रहेंगे? फंडामेंटल राइट्स जो कि मेंशन है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, बाकी आपको मिलेंगे. प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन करेगा. एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, व्हाइल द नेशनल इमरजेंसी और एनी कंट्री इज विद द वॉर विद द अनदर कंट्री, इंडिया इज विद द वॉर विद द अनदर कंट्री, एट दैट टाइम यू कैन नॉट फाइल, ठीक है, टू रिवोक योर सिटीजनशिप. आप अपनी सिटीजनशिप रिवोक करने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. सिटीजनशिप आपकी रोकी जा सकती है, या आप चाहते हैं कि सिटीजन रिवोक कर दे, ठीक है, तो रिवोक नहीं होती है उस टाइम पे. ओके, गॉट इट. सो वी हैव so far we have how many this national emergency? 3 है. 62 external aggression, 62, 71, 75, ठीक है. 65 की लगाने की जरूरत थी नहीं, कंटिन्यू कर दिया था हमने उसे. 62 वाली 65 में हमने कंटिन्यू कर दिया था. 71 and 75, ठीक है. सो फार वी हैव 3 नेशनल इमरजेंसी. ओके, जो लास्ट 76 वाली है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगाई थी, बाकी दोनों वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगाई. ये कंप्लीटेड द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है. हाँ, बहुत सारे थे, पढ़ाया तो है तुमको. आर्टिकल 20 है. आर्टिकल 20, ठीक है, इट इज बेसिकली अगेंस्ट नो एक्स पोस्ट फैक्टो डबल जेपर्डी और नो सेल्फ नो डबल जेपर्डी में कन्विक्शन कहाँ से आ गया? डबल जेपर्डी मतलब 2 बार आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होगी. और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अपने खिलाफ सबूत या नहीं देना, ठीक है, माना नहीं है. नेक्स्ट 22 इज अबाउट कन्विक्शन एंड दैट इज अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रिकॉशनरी कन्विक्शन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो 22 है. तो तुम कंफ्यूज मत हो, 22 है वो, ठीक है. कन्विक्शन और डिटेंशन में फर्क है. कन्विक्शन कब होता है? व्हेन यू हैव अ प्रॉपर ट्रायल हो और गिल्टी प्रूव्ड हो तो कन्विक्शन हो गया. डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, तुम कर सकते हो ये क्राइम तो तुम्हें उठा ले जाएंगे, ठीक. दिस इज वेरी पावरफुल. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना, इट इज अ वेरी पावरफुल, यू कैन से
एक्सट्रीम पावर है सेंटर के स्टेट गवर्नमेंट के केस में, ठीक है, मैंने क्राइम किया नहीं और उठा के लेके चले गए। तो एक होता है, इसी के लिए लिस्ट बनती है हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, वो इसी के लिए बनती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? समझ में आया? फैक्ट है, पढ़ो, विल कम टू मी। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल। So it was a dead letter according to अम्बेडकर। अम्बेडकर ने क्या बोला, ये डेड लेटर है, ये कभी काम ही नहीं आएगा, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं, सबसे ज़्यादा मिसयूज यही हुआ, तो अम्बेडकर जी क्या कर गए, दूर का नहीं देख पाए, ठीक है, ओके। ऐसे भी अम्बेडकर जी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ही वॉज मोर फेवर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। और ये भी एलिगेशन है कि द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय नेहरू एंड इट वॉज जस्ट स्टैम्प्ड बाय अम्बेडकर, ये भी एलिगेशन है। तो अम्बेडकर को खाली स्टैम्प की तरह यूज कर लिया और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू ने बना दिया, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनीथिंग। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर का पार्ट नहीं थे नेहरू। हाँ, 2 साल उन्होंने देश चलाया, 2 साल क्या किया, देश चलाया। ही वॉज अ मेंबर ऑफ अदर कमिटीज, ठीक है। 2 साल ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच सुना है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, स्पीच 14 अगस्त की मिडनाइट की जो स्पीच है ना, उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, नेहरू की स्पीच। सुनो या पढ़ो, इट्स अ वेरी गुड, किताब है उसके ऊपर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आई डोंट रिमेंबर द नेम, बहुत पहले पढ़ी थी, अभी तो याद भी नहीं है नाम किसने लिखी है। इट्स अ वेरी नाइस बुक, रीड इट, इंडिया के ऊपर है। तो नेहरू जी ने ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने बहुत काम किया, ठीक है। But he actually there was a recently one book, some writer from foreign IAS officer has written a book, The God Who Failed. The book is about Nehru, okay? So yes, he has made certain mistakes, there is no doubt in that, कुछ mistakes किया है उन्होंने अपने काम में। Biggest blunder was bringing the issue of Kashmir to the UN, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है उनका, ठीक है। एंड मोर रिलाइंग ऑन चाइना, दैट वाज अनदर ब्लंडर। कुछ ब्लंडर्स हैं उनकी भी अपने। सबसे पहले मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 इज डन बाय नेहरू हिमसेल्फ, ठीक है। तो उनका ख्वाब क्या था, पहले पीएम बनना, फिर प्रेसिडेंट बनना और फिर मर जाना, ठीक है। लेकिन पीएम बने और मर गए, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, दैट इज द केस। प्रेसिडेंट कब बने, राजेंद्र प्रसाद वो तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, और 2 टर्म तक थे वो, फिर उसके बाद राधे कृष्ण। चलो, okay, 356 why it is imposed by the same proclamation कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। ग्राउंड क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड बाय पीएम। ग्राउंड क्या होगा, देयर इज 2 ग्राउंड, फर्स्ट इज if there is a breakdown of constitutional machinery in the state. Second ground, it will be on the if any advice tendered by center and it is not followed by the state, then it is imposed. But the president rule cannot be imposed without a report by the governor. गवर्नर की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, you cannot impose a president rule in the state, ठीक है।
गवर्नर्स रिपोर्ट इज मैंडेटरी इन आइदर ऑफ द केस, दोनों ही केस में मैंडेटरी है वो, ठीक है। व्हाट हैपन इन दैट केस, रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रेसिडेंट को, ठीक है, नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन को रिमूव कैसे कर सकते हैं, सेम रेजोल्यूशन पास करवाओ। अच्छा, अप्रूवल भी चाहिए इसको भी, ठीक है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द हाउस, ठीक है, बोथ द हाउसेस। अप्रूवल के लिए क्या लगेगा, विद इन 2 मंथ इट शुड बी अप्रूव्ड, ठीक है, बाय बोथ द हाउस। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा पास करे, वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, इट इज अ सिंपल मेजॉरिटी, ओके फाइन। नेक्स्ट, इसमें अगर इसका अप्रूवल हो जाए, ठीक है, हाई कोर्ट सस्पेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट रूल को, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सस्पेंड प्रेसिडेंट रूल को, और किया भी है, ठीक है, अरुणाचल के केस में किया। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट रूल नेशनल इमरजेंसी एक्चुअली कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में जाके उधर भी कर सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मेलाफाइड इंटेंशन तो जज कर ही सकता है वो, तो इन दैट केस व्हाट कैन हैपन, दे कैन इम्पोज अ नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन, सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट कैन रिवोक, ठीक है। हाँ, एडवाइस पूछ सकता है, तब भी पूछेगा सीजीआई, हाँ, न्यू अपॉइंट, तो वही है ना कि अगर अपॉइंटमेंट के केस में आप पूछ रहे हैं, सो इट इज मैंडेटरी, मतलब जो बाइंडिंग हो जाएगा, जो भी एडवाइस वो टेंडर करेगा ना वो बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि कोई लॉ है एग्रीमेंट के, इसमें आप जानना चाहते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है, यू वांट टू मेक अ न्यू लॉ, ठीक है, तो उस पर अगर आप पूछना चाह रहे हैं दैट इज, तो उस केस में वो दे एडवाइस या ना दे, पहले तो डिस्क्रिप्शन उसका है, फिर वो एडवाइस दे तो ले या ना ले, डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट का है, ठीक है, तो मतलब ये फालतू ही काम है एक तरीके से, ओके, गॉट इट। नाउ ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन इज 6 मंथ, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 6, 42nd यू कैन से इनिशियली अभी 6 मंथ है, पहले कितना था 1 ईयर था, उसे 44 से हमने क्या किया 6 मंथ कर दिया, प्रेसिडेंट रूल में भी सेम है, वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। 6 मंथ ही क्यों कर रहे हैं हम लोग बार बार, वाई वी आर डूइंग 6 मंथ, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इसके लिए जब भी कोई सेशन आता है ना, तो वो उसे 6 मंथ को ही रखते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम है 6 मंथ के अंदर अप्रूवल ले लो आप, ठीक है। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट के ऊपर है, दे कैन, दे फील लाइक कॉलिंग अ सेशन, ठीक है, कॉल सेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। इवन इस प्रेसिडेंट रूल में स्टेट लेजिस्लेचर भी रहेगा, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होता स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ, कोई इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि इंडिविजुअल जो है ना ज़्यादा वो हो जाता है, कॉशियस हो जाता है, ठीक है, काम करो ना तो जाने वाला, वैसा सिचुएशन होता है, अपना आप डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ा खो देते हैं, मन किया तो किया, काम नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे पावर, ओके। सिंपल मेजॉरिटी है इसके पासिंग के लिए, ड्यूरेशन भी हो गया, ठीक है। अभी ड्यूरेशन बियॉन्ड अगर 1 साल लगानी है तो देयर इज 2 कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशन है ड्यूरेशन 1 साल लगाने की, या तो फिर नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी लगी हुई है, पहला, दूसरा कि इलेक्शन नहीं हो सकता, अगर आपने प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा कर दिया, 2 बार आपने 6 महीने में अप्रूवल ले लिया, फिर 6 महीने में अप्रूवल ले लिया, प्रेसिडेंट रूल 2 बार हो गया, ठीक है, 1 साल का ड्यूरेशन पूरा हो गया, 6 महीना 1 ईयर, ठीक है,
If you want to continue 1 year, there is two condition. One, either the national emergency is already in operation, national emergency लगी हुई है, तब 1 ईयर से आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोविजन है 1 साल से बढ़ाने का, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में खुद में है. या फिर इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट सबमिट करे कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता, देयर इज नो कॉन्ड्यूसिव कंडीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन, ठीक है, देन इट कैन हैपन. ओके, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. इन आइदर ऑफ द केस इट कैनॉट इंक्रीज मोर देन 3 years. प्रेसिडेंट रूल 3 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, ठीक है, एक्सेप्ट कि नेशनल इमरजेंसी का बहुत लंबा ड्यूरेशन ना हो, वो एक अलग चीज है, ठीक है. ओके, इलेक्शन कंडक्ट और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली हैज टू बी डन 3, मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 3 years. 3 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है. रिवोक कौन कर सकता है? इट कैन बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस. ओके, फंडामेंटल राइट पे इससे इम्पैक्ट क्या है नेशनल इमरजेंसी का? पहला इम्पैक्ट, फर्स्ट इम्पैक्ट इज it changes the relation between the specific state और सेंटर. It will turn into unitary. उनके रिलेशन में वो यूनिटरी हो जाएगा, ठीक है. सारा का सारा स्टेट पावर, स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर कौन देखेगा? सेंटर, ठीक है. अब ऐसे समझो, एग्जीक्यूटिव पावर कौन देखेगा? एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का कौन देखेगा? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. स्टेट का लेजिस्लेचर पावर कौन देखेगा? पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट, ठीक है, ये डिफरेंस है. लेजिस्लेचर का पावर लेजिस्लेचर के पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव का पावर एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा, ऑर्डिनेंस का पावर एग्जीक्यूटिव के पास में रहेगा, ठीक है. ऑर्डिनेंस पावर इज नॉट अ लेजिस्लेचर, इट इज एन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है वो, ठीक है. इट इज नॉट कंप्लीटली लेजिस्लेचर, बस खाली वो टेम्परेरी प्रोविजन है, टेम्परेरी आप यूज कर सकते हैं, परमानेंट नहीं है. आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वो तो कंप्लीटली सस्पेंडेड है, ठीक है, तभी वो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है. नाउ स्टेट लेजिस्लेचर, व्हाट विल हैपन टू द स्टेट लेजिस्लेचर? इट कैन आइदर बी डिसॉल्व और इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट, ठीक है. यू कैन नॉट डिसॉल्व अ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. You cannot dissolve the state legislature at the time of proclamation. You can only dissolve the state legislature when you get the approval from the parliament for the continuation of your proclamation. अगर से proclamation को continuation का approval मिल गया आपको parliament से, then only you can dissolve the state legislature, ठीक है. got the points? तो ये फर्क है. फंडामेंटल राइट पे क्या इम्पैक्ट है? फंडामेंटल राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. तुम्हारा जैसा फंडामेंटल राइट है, ठीक, कोई इम्पैक्ट नहीं. नाउ दिस कैन डिसोल्यूशन जो है, पार्लियामेंट कैन वांट, इफ दे वांट टू एक्सरसाइज देयर पावर, दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर, और इफ दे वांट टू ट्रांसफर दैट पावर टू द प्रेसिडेंट, दे कैन डू दैट आल्सो, ठीक. हाँ, सिक्योरिटी पर्पस से तो बंद कर ही सकते हैं ना. व्हेन वी वांट टू कब क्या फंडामेंटल राइट्स, आईपीसी के अंदर जाकर के हम कर सकते हैं, ठीक है, वो दैट इज ओके. 144 के अंदर, ओके. So this is what we have for the president rule emergency.
The last one is financial emergency. Financial emergency. Under Article 360. Under Article 360. Okay, so this can be imposed ground if the President, according to the Constitutional Amendment Act 38 के अंदर the President is satisfied that there is a financial crisis or instability, or the credit of the country is in a threat, then they can impose the financial emergency in the country. President का satisfaction is sufficient. ठीक है, and that is final and conclusive also. ठीक है, and it is not if it is final and conclusive, it is not questionable in the court of law also. ठीक है, now this part was deleted by 44th Constitutional Amendment Act. पहले क्या था, 38 में इसे बना दिया था, 38 Constitutional Amendment Act से फाइनल और कंक्लूसिव बना दिया, that is it is immune from judicial review. But by 44th Amendment Act, judicial review का power has been established, not review, established. Okay, तो मेजॉरिटी ऑफ द आज जुडिशियल रिव्यू के पास सब कुछ जुडिशियल रिव्यू, खाली डिलिमिटेशन कमीशन को छोड़ करके, बट रेस्ट एवरीथिंग अब वो कब वो स्पेशल लीव पिटिशन में डाल के उसे भी रिव्यू कर दे, वी डू नॉट नो. ठीक है, दैट कैन हैपन. अप्रूवल बोथ द हाउस, सिंपल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी किस केस में? सिर्फ नेशनल इमरजेंसी, यहाँ सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, कब तक ले सकते हैं? 2 साल तक ले सकते हैं अप्रूवल. Within 2 years you can take the approval. 2 years से 2 months. 2 months. ठीक है, not 2 years. It's 2 months. Same. ठीक है. और अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो नेशनल इमरजेंसी में फॉलो हो रहा है. ठीक है, कि राज्यसभा पास करेगा, लोकसभा आएगा तो वो 2 महीने के अंदर वो पास करेगा. ठीक है, एक बार अप्रूवल मिल गया तो बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं है. यहाँ पे बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये इंडेफिनेटली चलेगा. ओके, फ्रीक्वेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इन द नेशनल इमरजेंसी. It can be revoked. It can be revoked anytime by the president. ठीक है, what will be the impact of financial emergency? पहला, financial authority of the center will increase. Executive authority जो है, executive की authority on the financial matter will increase. हाँ, सेंटर की सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इमरजेंसी सेंटर ही लगाएगा, स्टेट नहीं लगाएगा. ओके, एंड दे कैन डायरेक्ट द सेंटर, काइंडली फॉलो द फाइनेंशियल और यू काइंडली टेक द ऑस्टेरिटी मेजर, curtail your expenditures, try to increase your revenue. तो दे कैन डायरेक्ट. और अगर सेंटर फॉलो नहीं किया डायरेक्शन तो 356 है हमारे पास. अगर से सेंटर फॉलो नहीं कर रहा है, स्टेट फॉलो नहीं कर रहा सेंटर का डायरेक्शन, तो 356 है हमारे पास. विल सी यू देयर. ठीक है, ओके. डायरेक्शन टू द स्टेट्स, क्या डायरेक्शन दे सकता है? यू कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज ऑफ एनी क्लास, एनी पर्सन, ठीक है, एनी ग्रेड सर्विंग इन द स्टेट, दैट इज स्टेट एम्प्लॉयज. ठीक है, it can also direct that kindly reserve all the money bill of the state for the approval from the president. Okay,
फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, सारे मनी बिल को डायरेक्ट करेगा कि आप रोक दीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑल्सो कैन इशू द डायरेक्शंस टू द, they can issue the directions to the reduction of salaries of any class in the center, ठीक है, even judges of the high court and the supreme court. Center even can acquire the full, so this resulted into what? Resulted into the full control on the financial matters of the state by the center, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर्स के स्टेट पे सेंटर का क्या है, फुल कंट्रोल, ठीक है। जजेस जजेस सेंटर ही अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट जज छोड़ के सेंटर ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, सैलरी वहां से नहीं आती है। सैलरी इज कम, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करता है, एंड दैट इज चार्ज, डिसाइड पार्लियामेंट करेगा कि कितना मिलेगा, ठीक है। पेंशन, हाँ, सब हाई कोर्ट के जजेस की, हाँ, वो एक ही लॉस है, एक ही उससे लॉस है, ठीक है। और पेंशन पे करता है सेंटर, उनका पेंशन सेंटर पे करता है। सैलरीज आर पेड बाय द हाई कोर्ट जजेस बाय द स्टेट को सैलरी देता है, सैलरीज अलावेंस वो सब स्टेट देता है, ठीक है। So this is what we have for the financial emergency. Do we need an emergency? हमें emergency चाहिए नहीं चाहिए? Provision of emergency. Internal के लिए नहीं लगेगी तो नहीं चलेगा ना, बैलेंस है इमरजेंसी का प्रोविजन, बैलेंसिंग प्रोविजन। और लेकिन फंडामेंटल राइट का बीच नहीं है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट नहीं है। इट इज गुड फॉर द, हाँ, इंडिविजुअल बाद में, यू बिलोंग टू अ नेशन देन यू बिलोंग टू द इंडिविजुअल, सो द नेशंस कम फर्स्ट एंड द इंडिविजुअल कम्स second. And what is the definition of nation? The nation comes from the nationalism. तो फीलिंग का डेफिनेशन क्या है? तो फिर कैसे मैं मान लूँ तुम, मैं नेशन को बिलीव करूँ? कोई डेफिनेशन नहीं है। बड़ों की आइडियोलॉजी, anybody else? I'll answer you later. Anybody else? किसी को कुछ पूछना है? एमरजेंसी, हाँ हाँ, हाँ, तो इमरजेंसी ही अच्छी चीज़ है, मतलब इट इज़ अ फोरकास्टिंग प्रोविजन कि अगर ऐसा हुआ तो हम इमरजेंसी लगा देंगे, दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इनफ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, वेरी इनफ्रीक्वेंट होना चाहिए, सफिशिएंट ग्राउंड। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया और बहुत इजी हो गया उसे रिवोक करना, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड एस्पेक्ट, ओके, दैट इज़ गुड एस्पेक्ट मोस्ट। तो व्हाई वी हैव डन इन द 44, लाइक वी हैव टोल्ड यू, व्हेन वी नेगोशिएट समथिंग इन द पार्लियामेंट, व्हाट वी नेगोशिएट either in the parliament or the constitutional assembly, हम क्या नेगोशिएट करते हैं? वी नेगोशिएट फियर। 44th अमेंडमेंट एक्ट में वही किया हमने, ठीक है, फियर नेगोशिएट हुआ। तो हमने फियर एक्सपीरियंस किया किससे? 76 के इमरजेंसी। तो हमने क्या नेगोशिएट किया? फिर फियर नेगोशिएट किया और हमने फियर को कम करने की कोशिश करी, ठीक है। तो जैसे आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द गुड इंटेंशंस, I have a problem with the bad intention, ठीक है। And if you have a bad intention and you are powerful,
then what will happen? If you have a bad intention and you are powerful, then what will happen? तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ना. तो what will I when will I get a equal platform? जब मुझे इक्वल प्लेटफॉर्म तुमसे मिलेगा, जहां तुम भी समझोगे ठीक है तू इक्वल ही है, विल नेगोशिएट. तो व्हाट विल आई नेगोशिएट? आई विल नेगोशिएट माय फियर, नॉट योर गुड डीड्स. ठीक है, तुम्हारी फिलैंथ्रोपी मैं नहीं नेगोशिएट करूंगा. व्हाट विल आई नेगोशिएट? आई नेगोशिएट फियर. ठीक है, इसी के लिए कॉन्सेप्ट है, रॉल्स का कॉन्सेप्ट है. veil of ignorance. मॉडर्न वर्ल्ड का जस्टिस पे सबसे बड़ी थ्योरी इसी की है, जॉन रॉल्स. एंड फॉर योर आंसर ऑन यस्टरडेज इट वाज, तुम्हारा कल का आंसर है हीगल, द मैन स्टैंडिंग ऑन द हेड, ही नीड टू स्टैंड ऑन हिज फीट. इट इज हीगल. हीगल को मार्क्स ने बोला था, और हीगलियन सोसाइटी का मेंबर भी था मार्क्स पहले. बाद में सबसे बड़ा क्रिटिक भी उसी का बना हीगल. मार्क्स ने अपनी सारी चीजें लिखी है हीगल की क्रिटिक में. ठीक है, हीगल एक थिंकर है, फिलोसफी का. सो रॉल वेल ऑफ इग्नोरेंस, यू विल रीड दैट इन योर एथिक्स पेपर. एथिक्स के पेपर पढ़ो, वेल ऑफ इग्नोरेंस तो यही है. ठीक है, वी आर नेगोशिएट फियर, वी डोंट नेगोशिएट. एक्चुअली वी नेगोशिएट इन एवरी प्लेस. वी नेगोशिएट फियर, वी नेवर नेगोशिएट तुम्हारे गुड डीड्स, फिलैंथ्रोपी, वो नेगोशिएट कभी नहीं होता. ठीक है, हमेशा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना तो हम फियर ही नेगोशिएट करते हैं, टू हैव ए इक्वल ग्राउंड. एनी क्वेश्चन? अब हो गया खत्म. नेशनल इमरजेंसी इज ओवर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. क्लास के बीच में पहले बाद में क्लास के 2021 दे रखे हैं. हाँ, हाँ, नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्पेसिफिक कंट्री में लगी है तो बाकी स्टेट्स इफेक्टिव होती है बिल्कुल, या फिर सेंटर से कुछ कर सकता है. मतलब समझा नहीं, सेकंड वाला क्या है? सर कुछ नहीं है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, हाँ, एक स्पेसिफिक पार्ट पे लगी है तो बस उसी पे, हाँ उसी पे वो इम्प्लीमेंट है. बाकी कहीं पर वो लगाना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा थ्रू आउट द कंट्री. किसमें क्या लिखा है? प्रोवाइड करा है कि नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू द स्टेट वेयर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट आल्सो टू एनी इमरजेंसी. Can be extended later. Yes, it can be extended. It can be extended. 40 feet. हो उतने पे लगा है. प्रोक्लेमेशन नया लाने की जरूरत नहीं है, उसे वैसे ही एक्सटेंड कर सकता है वो. कहने का मतलब वो है. ठीक है, कि मुझे क्या करना है, अगर से दूसरी जगह लगाने से मैंने यूपी में लगा दिया, लेकिन मुझे हरियाणा भी लगाना है और क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ भी और एमपी भी लगाना है, तो मुझे नया प्रोक्लेमेशन लाने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सटेंड कर देना. ठीक है, हाँ बढ़ा देना उसे. गवर्नर रिपोर्ट इज मैंडेटरी. ठीक है, एंड दैट इज करेक्ट. 20 और 21 है, 21 22 नहीं है, 20 और 21 है. हाँ, कन्विक्शन और राइट टू लाइफ वाला. ठीक है, 22, हाँ डिटेंशन अलग. डिटेंशन हैज राइट. यस यस करेक्ट. सो देयर इज ए करेक्शन. इट इज 20 एंड 21. ठीक है, 20 और 21 है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है. ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कंपलसरी, क्योंकि बिना प्रिवेंटिव डिटेंशन हम इफेक्टिवली प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, अनदर इज व्हाट वाज दैट? गवर्नर की रिपोर्ट एक्चुअली इट इज कंपलसरी और अदरवाइज इज एक्चुअली
और उसमें अदरवाइज का मतलब यही हुआ ना कि वैसे क्रिएशन हो गया, जो सुना है उसको कंपलसरी है। अब तक के तो बिना गवर्नर के एडवाइस से नहीं लगता है। अभी बिना क्यों नहीं लगता है गवर्नर के एडवाइस से? क्योंकि पार्लियामेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे। देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दिस दैट इट शुड बी द you can impose the president rule, but that president rule ये that was the case SR बोमाई के केस में है ये कि you can impose the president rule on the advice of the on the reports of the governor, पहला, ठीक है, गवर्नर की रिपोर्ट पे, ठीक है, गवर्नर का रिपोर्ट शुड बी, मैंने पढ़ाया भी है तुम्हें, गवर्नर का रिपोर्ट शुड बी स्पीकिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसा वेगली नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए स्पीकिंग डॉक्यूमेंट कि हाँ ठीक है, मतलब इस वजह से आप लगा सकते हैं दिस आर द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? हंग असेंबली है। तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ये कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं फॉर्म कर पा रहा है। तो सिचुएशन कैसी है? महाराष्ट्र में यही हुआ, हंग असेंबली है, सिचुएशन क्राइसिस है। तो गवर्नर रिपोर्ट देते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, इम्पोज अ प्रेसिडेंट रूल इफ यू वांट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है वो अदरवाइज के केस में, ठीक है। यू रीड आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 पढ़ो। रीड द फुल आर्टिकल, डोंट रीड दिस टेक्स्ट, इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें नहीं होगा। मोबाइल में देखो, गूगल, इसलिए SR बोमाई के केस में क्लियरली क्लेरिफाइड है गवर्नमेंट का। आर्टिकल 356 पढ़ो। बस इतना ही है, 356 के आगे और कुछ नहीं लिखा। पूरा पढ़ो। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी, और आगे कुछ नहीं लिखा है। हाँ, दैट्स इट, बस इसके आगे कुछ नहीं है। विकिपीडिया नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, ओरिजिनल टेक्स्ट। विकिपीडिया यू कैन ऑल्सो गो एंड एडिट विकिपीडिया, कोई बड़ी बात नहीं है। साइटेशन चाहिए उन्हें, और आर्टिकल 350 ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोग को? PDF के डाउनलोड करना है, indianqanun.com इतना सारा, तो क्या कर रहे हैं? The provision in the case of the failure of the constitutional machinery of the state. First, if the president on the receipt of the report from the government, from the governor of the state, or otherwise, the otherwise what has been used? Otherwise, if satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provision of the constitution, the president can proclaim the emergency. Otherwise, it's yes. But so far, practicality यही है. Otherwise, is the constitutional word is being used. हाँ, जरूरी नहीं, otherwise ठीक है. वैसे होता नहीं है,
प्रैक्टिकलिटी सब ये है ना कि अप्रूव by नहीं chance करते हैं, कोई कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है उसके पास। जनरली गवर्नर के बिना ऑर्डर के नहीं करता, ठीक है। और प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी वैसा ही है, ठीक है। अभी तक के इनिशियली होता था ऐसे, बिना गवर्नमेंट के रिपोर्ट के भी किया है 50 नेहरू के टाइम पे, तो अदरवाइज भी है। ओके फाइन, अदरवाइज ऑल्सो देयर इज अ करेक्शन इन द टेक्स्ट।